Hello students. On the behalf of MGV's Arts Commerce Science College Malegaon City, I would like to welcome you all here. I am Zareen Naz Mohammad Iqbal. I am your English teacher and this is the class of SYBA Special Paper 2nd. And today we are going to learn what is poetry. So for that today's topic is Introduction to Poetry. First, before moving further, we have to know what is the definition of poetry, and after that it will become the clear-cut idea in our mind that what is poetry is. That as we know, literature has two parts. One is prose and another one is poetry. In prose there is no any meter the writer follows, but in the poetry the poet or the writer follows some kind of meter or some kind of particular pattern. प्रोज़ और पोइट्री में दो अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन पोइट्री जो नज़्म होती है उसमें अल्फाज का जो वज़न होता है उसका ख्याल रखा जाता है. सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री? A collection of words that express an idea or emotion. That is a very simple definition. That is a collection of words that express the ideas or emotion. And what is the second one? Poems are literary attempts to share the personal experiences or feelings. So in the poetry, the main concern of the poet is to share the feelings and emotions in the form of poem. So that is the basic thing, that poet tried to convey his feelings, his emotion, and convey what he thinks and what the opinion he has or she has about something or someone. So for that we moving forward, that is a short poetry glossary where for understanding what is the poetry you have to know these small terms. The first one is stanza, but when it comes to prose it will called as a paragraph. जब हम प्रोज़ में हम लिखते हैं कोई राइटिंग तो जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? पैराग्राफ. बट इन द पोइट्री दैट इट वुड कॉल स्टांजा. A set amount of lines in poetry grouped together by their length, meter or rhyme scheme. Now the second one is couplet. Couplet, that is nothing but the collection of two lines, जिसे हम उर्दू में शेर कहते हैं. That is called couplet. Now the third one is tercet. That is the 3 line. Sometimes that poet wants to convey his feelings by using the collection of 3 lines, and that is called as a tercet. Now the next one is quatrain. Quatrain means the collection of 4 lines. And the cinquant जो होता है that is a collection of 5 line, and sestet जो होता है that is a collection of 6 line. So most probably आपको जो है वो sestet और couplet और quatrain इसका ज़्यादा आपको use होता है in the poetry. That meter. What is meter? Meter means a pattern of stressed syllables, long sounding and unstressed syllable, short sounding in poetry. यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि जब पोइट्री लिखी जाती है तो उसके जो अल्फाज के वज़न हैं उसे ध्यान में रखकर लिखा जाता है. उसका एक पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल. कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, किसी में कम स्ट्रेस्ड होता है. सो देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रेस्ड लॉन्ग साउंडिंग एंड शॉर्ट साउंडिंग सिलेबल्स इज़ देयर. तो उसका ख्याल रखकर जो है वो कपलेट को लिखा जाता है. नाउ द राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम हम हमेशा से जानते हैं कि पोइट्री जो होती है उसका लास्ट वर्ड जो होता है वो अल्टरनेट लाइन के लास्ट वर्ड से बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर साउंड होता है. दिस इज़ कॉल्ड एज द राइमिंग स्कीम. द पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन और वर्ड्स. उसका जो पैटर्न होता है जैसे कट, शट, इस तरह से जो लास्ट का जो टी साउंड है वो सेम है कट और शट में. तो ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सिलेबल. सिलेबल द सिंगल अनब्रोकन साउंड और स्पोकन और रिटन वर्ड. सिलेबल किसे कहते हैं? जैसे कि मैं कह रही हूँ कम, गो, तो ये एक सिलेबल है इसमें. अगर मैं कहती हूँ अंडरस्टैंड तो अंडरस्टैंड इसमें 3 सिलेबल होंगे. तो लाइक दिस सिलेबल्स भी होते हैं. इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के पोइट्री को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जाता है. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ पोइट्री. दैट इज़ द बेसिक थिंग विच वी नो अबाउट आवर पेपर
special paper second, where your question will be asked like this: so what is the poetry, and explain its type. For that you have to know what are the types of poetry. The first one is blank verse. ब्लैंक वर्स इट सेल्फ शोज़ दैट कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे ब्लैंक है. अब यहाँ पे जो वर्स है, जो लाइंस लिखी गई हैं पोइट्री में, इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स इज़ अ पोइट्री रिटन विथ ए प्रिसाइज मीटर, ऑलमोस्ट ऑल्सो आयम्बिक पेंटामीटर दैट डज नॉट राइम. उसमें राइम नहीं होता. अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज़ राइम, कट और शट की एग्जाम्पल ली थी. तो ब्लैंक वर्स में दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्री वर्स एज वेल. इसको फ्री वर्स भी कहते हैं, जहाँ पर लास्ट वर्ड में कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं होती है. नाउ द राइम्ड पोइट्री. अब यहाँ पे ये दिस इज़ अ टोटली अपोजिट ऑफ द ब्लैंक वर्स. यहाँ पे राइमिंग स्कीम फॉलो होगी. इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लैंक वर्स, राइम्ड पोएम्स राइम बाय डेफिनेशन ऑल्दो देयर स्कीम वेरीज. यहाँ पे जो है वो अलग अलग राइमिंग स्कीम के पैटर्न्स होते हैं, विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेसन. जब आप जैसे ही आपका पोइट्री का एक्सप्लेनेशन होगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह की राइमिंग स्कीम के पैटर्न होते हैं. तो राइम्ड पोइट्री में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है उसे फॉलो किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एपिक. Epics. An epic poem is a lengthy narrative work of poetry. These long poems typically details extraordinary feats and adventures of characters from distant past. एपिक में ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में जो भी कहानियाँ गुजर चुकी हैं उनको बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है. उसमें कोई एक हीरोइक फिगर होता है. वो कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है. जैसे कि अगर हमें कोई झांसी की रानी के बारे में कोई पोएम लिखनी है, तो दैट विल बी द मेन कैरेक्टर ऑफ आर एपिक. और हम उसकी तारीफ़ में जो पोएम लिखेंगे, या किसी शहज़ादे की तारीफ़ में हम कोई पोएम लिख रहे हैं, तो वो एपिक कहलाता है. और उसमें जो है उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में उन्होंने जो कारनामे किए हैं, एडवेंचरस जो उन्होंने कर रखे हैं, उनको बयान किया जाता है. सो दैट पोएम इज़ कॉल्ड एज अ एपिक्स. नाउ द नैरेटिव पोएम्स. ये सारी पोइट्रीज़ की अलग अलग टाइप है, जहाँ पे जैसे ही उसका बयान करने का अंदाज़ बदलता है, पोइट्री का नाम जो है वो चेंज हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दोज वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री. So the narrative poetry is similar to an epic. A narrative poem tells a story. एपिक्स और नैरेटिव पोइट्री में यही होता है. नैरेशन का मतलब ही होता है बयान करना. नैरेटिव पोइट्री में क्या होगा, दैट पोएट ट्राई टू नैरेट हिज स्टोरी. वो अपनी स्टोरी को पोएम में बयान कर रहा है. जैसे वो किसी बर्ड के बारे में कुछ खूबसूरत अल्फाज लिख रहा है, दैट नाइट एंगल के बारे में, तो वो नैरेट कर रहा है उस स्टोरी को. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो द मिडनाइट. ये जो पोएट हैं उनकी जो पोइट्री है, द नाइट राइड ऑफ पॉल रिवर एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसे एस.टी. कोलरिज हम कहते हैं. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर सिंप्लीफाइज दिस फॉर्म. इस फॉर्म की जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल्स है. ये दोनों आपको नाम जो है वो याद रख लेने हैं. Now the next one is haiku. Haiku, this is a 3-line poetic form of originating in Japan. ये यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे देखा 3 लाइन की जो पोइट्री थी, जिसे टर्सेट कहा जाता है, लेकिन ये जो पोइट्री का ओरिजिन है वो जापान में हुआ था और वहाँ पे इसे हाइकू कहा जाता है. दिस इज़ द जापानीज़ वर्ड. तो आपको ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं. द फर्स्ट लाइन हैज़ ए 5 syllables, द सेकंड line has a 7 syllables and the third line again has a 5 syllable. मीन्स कैसे इसकी स्कीम हो गई, 5, 7 and 5. इस तरह से उसके syllables होते हैं और इस तरह से हाइकू को अरेंज करके लिखा जाता है. और 3 लाइन्स की पोइट्री में अगर 5 और 7 और फिर 5 syllables होगा, तो अल्टीमेटली these 3 lines is called as a haiku, which is originating in Japan. Now the next one is sonnet. This is one of the famous poetic form where most of the poets love to write in this form. This is called as a sonnet. A sonnet is a 14-line poem, typically but not
exclusively concerning the topic of love. Sonnets contains internal rhymes within their 14 lines. The exact rhyme schemes depends on the style of a sonnet. सबसे बेहतरीन जो इसकी खासियत ये है that it has a 14 lines. ओके एंड विलियम शेक्सपियर्स ने भी बहुत सारे सॉनेट्स लिखे हैं उनके. देयर आर द कलेक्शंस ऑफ सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स एंड आफ्टर दैट देयर आर मेनी पोइट्स हु फॉलोज दीज काइंड ऑफ पोइट्री टू राइट. तो यहाँ पे जो 14 लाइंस होती हैं उसमें राइटर जो होता है पोइट्स जो है वो ही ट्राई टू एक्सप्लेन हिज थॉट्स ओनली इन द 14 लाइंस. नाउ द एलिजीज. Elegies. An elegy is a poem that reflects upon death or loss. Traditionally, it contains a theme of mourning, loss, and reflection. However, it can also explore themes of redemption and consolation. यहाँ पे एलिजीज़ हमेशा किसी के मरने के बाद लिखी जाती है, किसी की याद में जब कोई मर जाता है और उसे उसकी याद में जो पोएम लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ एलिजी. द वर्ल्ड की मोस्ट फेमस एलिजी का नाम है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ए एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एलिजी है. इसमें उनके दोस्त के याद में उन्होंने लिखी थी. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ऑड. मच लाइक एन एलेजी, ओड जो है वो एलेजी की तरह ही है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें. एन ओड इज़ ए ट्रिब्यूट टू इट्स सब्जेक्ट ऑल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट टू डेड और इवन सेंटेंट. यहाँ पे क्या होगा कि ओड जो है ये किसी की याद में या किसी की तारीफ़ में लिखी जा सकती है लेकिन यहाँ पे किसी की मरने के बाद लिखा जाना ज़रूरी नहीं है. एज इन जॉन किट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ग्रेशियन अर्न मीन्स दैट यू नो यूटेंसिल्स विच वी यूज़. तो जो ग्रेशियन के जो अर्न थे उनकी तारीफ़ में उन्होंने ओड लिखा था. यहाँ पर जो है ये किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में लिख रहे हैं और यहाँ पे किसी के मर जाने के बाद लिखना ऐसा कंपल्शन बिल्कुल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बैलेड. ए बैलेड देखो यहाँ पे दो स्पेलिंग है, यहाँ पे डी के बाद ई भी लिखा हुआ है. इज़ ए फॉर्म एंड बोथ आर करेक्ट. इज़ ए फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव वर्स दैट कैन बी ईदर पोएटिक और म्यूज़िकल. बैलेड की खासियत होती है कि इसे इस तरह लिखा जाता है कि जिसे आप म्यूज़िक पे सिंग कर सकते हो, जिसे आप गा सकते हो. पहले जो है वो स्टेज पे बैलेड्स को परफॉर्म किया जाता था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और बैलेड को गाया जाता था और उस पर रक़्स भी किया जाता था. सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस पोएटिक फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेड. And it typically follows a pattern of a rhymed quatrains from John Keats to Samuel Taylor Coleridge to Bob Dylan. It represents a melodious form of a storytelling. In ballads, there is some story where one is sing and there are some instrumental sound is there, and that ballad or that poem contains a particular story. So here we have seen some type of poetry which you have to remember because this is this is your special paper and in your exam this kind of question comes compulsorily. आपको ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोइट्री. सो वी हैव लर्न सम काइंड्स द ब्लैंक वर्ड्स, उसी का अपोजिट है राइम्ड पोइट्री. देन द नेक्स्ट वन इज़ एपिक्स एंड देन द नैरेटिव पोइट्री एंड देयर आर सम अदर एलिजीज ओड्स एंड लाइक दिस बैलेड. So I would like to say thank you to all students and good luck for your studies. Thank you so much.